जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो नई तकनीक है वो तकनीक जो आगे बढ़ेगी और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने जा रही है। इस तरीके से सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि आज के समय में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और तकनीक के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो। और निश्चित तौर पर जब हम तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं या किसी नई तकनीक पे काम करते हैं तो उसका फायदा केवल भारत को नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मिलेगा। और जरूरत इस बात की है कि जब इतने बड़े बाजार के तौर पर हम भारत को दुनिया देखती है तो हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहे। वोडाफोन के एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से समृद्धि, उन्नति और सतत विकास, इस दृष्टिकोण को साकार करती है। एंड देन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ नेशंस डिजिटल जर्नी, but in fact it is about a global dialogue on the immense possibilities that emerge when visionary leadership converges with technology and innovation. So we take you in this very exciting and exhilarating and promising world of India Mobile Congress 2023 through a short film. India, a name synonymous with innovation. Driving digital growth across the world. With over 1 billion mobile phones and 800 million active internet users, India is now at the helm of the global digital reform. It is no surprise that the country now accounts for over 46% of global digital transactions. This achievement is a result of the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has consistently taken comprehensive steps to harness the nation's vast potential in this sector. In October 2022, during the India Mobile Congress, he ushered in a new era of connectivity by launching 5G services for the nation. 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। India has moved so far this decade with its digital public infrastructure, with the adoption of technology. In some ways, there is no other country that has seen something quite like this. It's truly extraordinary. Incredible to see the digital transformations recently. And I mean, now you can use GPay to pay anywhere. It's incredible. In India, one of the things that's very exceptional that's happening is digital public goods that's getting built is for language translation. The follow through on the scaling up of India's digital stack, is a model other countries are thinking about. A robust connectivity infrastructure with more than 3.74 lakh 5G towers in over 735 Indian districts has made 5G accessible to over 100 million Indians in a year. Beating nations like the US and China with the fastest 5G rollout in the world, India is well on its way to having the world's largest 5G connectivity. The impact of this digital growth has simply been unprecedented. Digital public infrastructure built on connectivity has enabled public services never thought of before, which is now being adopted globally. Digital India has directly empowered and benefited the underprivileged, youth, women, and farmers in real time. After empowering unprecedented digital innovation at home, India is now among the only 5 countries to deploy its own indigenous 5G stack and lead the way for the world. India also stands tall as one of the leaders in developing 6G technology with its Bharat 6G Alliance initiative.
India has made continuous stride promoting new age skills and making investments in technological research to enable state-of-the-art labs and infrastructure in the country over the past few years. Result, all of these factors are contributing to India's rise as the third largest economy in the world. India Mobile Congress 2023 will now set the stage for the globalization of these indigenous innovations. With its theme as Global Digital Innovation, the largest tech event in Asia is proudly hosting thought leaders, entrepreneurs, innovators, investors, academia, regulators, and policymakers from more than 31 countries to bring the next digital revolution worldwide. In line with the Honorable Prime Minister's vision of empowering startups in the country, IMC 2023 is also launching Aspire, an initiative to ignite the future of entrepreneurship. From India to the world, digital innovation will find a new home at the India Mobile Congress 2023. So that is where, ladies and gentlemen, where innovation knows no bounds and the future of digital transformation unfolds. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा है और अब उसे आगे ले जाते हुए देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग करके शोध और एप्लीकेशन विकसित करने हेतु 100 5G लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भी की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण जय विज्ञान, जय अनुसंधान को साकार करते हुए ये लैब्स स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अनुप्रयोगों को विकसित करेंगे। तो अब समय है इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का और मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर यह 100 लैब्स सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करें। और स्क्रीन पर देवी सज्जनों आप देख सकते हैं ये लैब्स इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ते हुए जिन्हें ये लैब्स प्रदान किए जा रहे हैं। In October 2022, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 5G services in India. And impressed upon the potential of 5G that can transform the lives of the common man by enabling innovations in diverse socio-economic spheres. To realize this, in March 2023, Prime Minister Narendra Modi emphasized the establishment of 100 5G labs. आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। PM's announcement is now a reality, wherein 100 institutions have been selected for the award of 5G labs, which consists of compact 5G network and use case devices such as drone, AR/VR headset, startup testing kit to develop use case applications related to education, health, agriculture and other sectors. 100 new 5G labs will act as testing cum breeding grounds for upskilling local innovators such as students and startups and aid in developing new range of use case applications according to India's common man needs, further enabling India's ascent towards becoming the third largest economy in the world. Now, in the presence of Honorable Prime Minister, 5G labs are being awarded to 100 institutions in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal. With these labs, India will be a front runner in designing, developing and deploying 5G and 6G technologies. Jai Hind. तो सभी इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत बधाई. And ladies and gentlemen, in a world which is continuously looking for more sustainable and innovative solutions, India, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, is stepping up to provide answers and solutions to these global challenges. And again, it is not just about Make in India or Make for India, but it is about providing solutions which the whole world can embrace. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैश्विक समाधान प्रदान करता है. एक ऐसे भविष्य को आकार देता है जहां पर प्रौद्योगिकी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करती है, जहां वे समाजों का उत्थान करती है, विभाजन को पाटती है और वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती है. And today, ladies and gentlemen, we have the distinct honor and privilege of listening to a global visionary leader for whom the whole world is one big family. We invite his views and guidance on the theme of global digital innovation, which is the cornerstone of our collective journey in this shared sustainable future. So please join me, ladies and gentlemen, as I extend a very warm and enthusiastic invite to the Honorable Prime Minister for his inaugural address. मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी, मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है. 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है. एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था. लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ. अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे. इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स. आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है
कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से
खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा।
इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। क्यों, यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। दो 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। दो 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका ये कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम
मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे। आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर
एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट्स पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं। साथियों, लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई बसेस मिस कर दी है। इसके बाद वो समय भी आया जब हमने ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज में अपना टैलेंट दिखाया। हमें हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के उसने भी उसको अभी बढ़ाने के लिए भरपूर जो प्रयास हुआ है। लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड भारत की थॉट लीडरशिप का समय है। और मैं यहाँ बैठे हुए सबको और ये जो 100 लैब्स के उद्घाटन में बैठे हुए नौजवानों को कह रहा हूँ, और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो गारंटी से कम नहीं होती है। और इसीलिए मैं थॉट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं। थॉट लीडर्स एक नए डायमेंशन बना सकते हैं जिसे बाद में दुनिया फॉलो करे। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इवन कोविड के समय हमने कोविन का जो इनिशिएटिव लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंट एडॉप्टर और इम्प्लीमेंटर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का थॉट लीडर भी बनना ही होगा। भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं।
फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देश के, दिल्ली के, अगल बगल के इलाके के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि वो भारत मंडपम में आए और ये जो एग्जीबिशन लगा है, जिसकी टेक्नोलॉजी में रुचि है, टेक्नोलॉजी भविष्य में जीवन में कैसे नए नए क्षेत्रों को छूने वाली है, उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम हो वो भी यहाँ आकर इन चीज़ों को देखे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को रिचार्ज करने का, रीइग्नाइट करने का, इंस्पायर करने का कि भारत विश्व का थॉट लीडर बने। और यहाँ पर युवा शक्ति पर आपका विश्वास, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका मार्गदर्शन निस्संदेह सभी को डिजिटल दुनिया में नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करेगा।